Hello, dear students. Welcome to the class today. Children, actually, I thought we should start this chapter because many of the chapters we have completed in other subjects. Second chapter, two chapters have to be over in all the subjects. So I thought ki are already over. So I thought I would be carrying on with this chapter. Second chapter, sectors of the Indian economy. Economy, ninth class में you were introduced to economics. Last chapter, the first chapter that we have done, there we have talked about development. When we have talked about development, we needed to understand that development is a phenomena which is applicable in all walks of life. हर जगह पे हमने development देखा and we also talked about sustainable development. Development as a whole खाली अपने लिए development की बात नहीं की. We have also talked about development in an overall manner. Development in a manner जिसमें कि there is we have to consider the well-being of the common people. हर एक लोगों का भला होना चाहिए. This we have tried to understand. अब क्या है? Here we will be understanding sectors of economic activities. Actually, जितना भी इकोनॉमी कंट्री में हो रहा है, 1 रुपए से लेके अरबों खरबों रुपए तक, so we have to be very sure about these activities. How it is divided? What is the basis and what is the criteria of the division of these economic activities? Detail में इसको समझना है. We will be getting that people are engaged in various economic activities. अलग-अलग तरीके का काम कर रहे हैं. Lot of economic activities. Okay? People are engaged in different हर तरह का. Please understand. ये मैं इसलिए लिख रही हूं, सिंपल स्टेटमेंट है, लेकिन वो क्या एक्टिविटीज है इसको डिटेल में समझना जरूरी है. अब ये एक्टिविटीज क्या है? व्हाट आर दीज एक्टिविटीज? इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि some people are producing goods. ठीक है, सामान मैन्युफैक्चर हो रहा है ना. विम की टिकिया आ रही है घर पे, लेज खा रहे हो, कोक है, कपड़े पहने हुए हैं, सब कुछ गुड्स है. एवरीथिंग इज गुड एंड दीज एक्टिविटीज आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट. अभी जो बातें कर रही हूं, वॉट एवर आई एम टॉकिंग, some goods are being produced. So how do we understand this? इसमें क्या है? The groups are there which classify them with some important criterion. There are groups which classify these economic activities. इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्लासिफाई करने के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए गए हैं. एंड प्लीज अंडरस्टैंड, इतना जो भूमिका बांधी, दीज ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स हैं, आर कॉल्ड एज सेक्टर्स. टाइटल ऑफ द चैप्टर, वहां पे अभी हम पहुंचे हैं. वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सेक्टर्स का मतलब क्या हुआ.
Different groups are there. ये मैंने चश्मा पहना हुआ है, इसकी भी somewhere manufacturing had happened. Dear students, this manufacturing that had happened, इसमें ये डंडी कहाँ से आई, ये शीशा कहीं से आया होगा, इसमें छोटे छोटे बोल्ट लगे हुए हैं, वो भी कहीं से आए होंगे, and then it has been assembled and has been formed in the way in specs, चश्मे के फॉर्म में इसको ले आया गया. अब समझो, दिस इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग. ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स को हम सेक्टर्स कह रहे हैं. बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं. देयर आर मेनी एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. अब हम आते हैं डिफरेंट सेक्टर्स पे. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स. ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, जहां पे जो भी काम हो रहा है, whatever work is being done in these different groups, these are combined into activities. Okay, so some activities that are there, that is undertaken, some activities are undertaken directly using natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके ये एक्टिविटीज ली गई है, जैसे कि कल्टीवेशन ऑफ कॉटन. कपड़े की बात अभी मैं आपसे कर ही रही थी. कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इज डन. इट टेक्स प्लेस विद इन, एक ही क्रॉप सीजन है जिसमें कि कॉटन आप कल्टीवेट कर सकते हैं. अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन इज डन इन अ सीजन. एक सीजन में कॉटन इन अ सीजन, हर जगह आपको कॉटन मिलेगा भी नहीं. वाराणसी के आसपास कहीं खोज के देखो, कैन यू फाइंड कॉटन? नो. You are getting these crops at some particular places. कुछ खास जगह है, वहीं पे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी. ओके, जैसे फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली ऑन नेचुरल फैक्टर्स. ठीक है. सो फॉर ग्रोइंग कॉटन we depend on natural factors. नेचर ने जो दिया है, नेचुरल फैक्टर्स मेनली, पूरी तरह से तो नहीं लेकिन मेनली, बट नॉट एंटायरली. हर तरीके से हम नहीं कह सकते. सीड्स है कॉटन का, हमने कॉटन लगाया, कॉटन ग्रो हो रहा है, लेकिन एंटायरली कॉटन वी आर नॉट ग्रोइंग. नेचुरल फैक्टर्स आर देयर, जैसे कि रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट, लेकिन द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. कॉटन कहां से आ रहा है? प्लांट से आ रहा है. सो वी डिपेंड ऑन नेचर. नेचुरल रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं ना, एंड एंड प्रोडक्ट इज कॉटन. फाइनली जो प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज कॉटन. कॉटन तो अब ये नेचुरल हो गया. इसी तरह से जैसे डेयरी है, मिल्क, वी आर we are dependent on the biological process of animals and availability of fodder. गाय भैंस जितना अच्छा खाना खाएगी उतना अच्छा दूध देगी. फॉडर. ओके, सो यहां पे एंड प्रोडक्ट क्या है? मिल्क. इट इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोडक्ट.
इसी तरह से मिनरल्स, ओर्स आर ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स. यहां पे एग्जाम्पल ऑफ डेयरी, ठीक है. मिल्क इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. गाय भैंस से हमको डायरेक्टली दूध मिल रहा है, and we are very much dependent on the biological process of animals and availability of fodder. चारा इतना, जितना अच्छा चारा होगा उतना अच्छा हमको जो है दूध मिलेगा. So product here, milk is a natural product. उसी तरह से minerals are there, ores are there, they are also natural products. Minerals, ores are natural product. ये सब भी नेचर ने ही हमको दिया है. नेचर हैज bestowed on us. So when we are getting it from nature, this will prove कि जो natural resources को we are exploiting the natural resources. This is called as the primary sector. When we are डायरेक्टली हमको नेचर से मिल रहा है, उसमें हमारा कुछ भी अपने तरफ से हम ऐड नहीं कर रहे हैं. अपने तरफ से ऐड क्या कर रहे हैं? चारा काट के लाके जानवर को दे दिया, यही है अपने तरफ से. अब अपने तरफ से इसको नहीं कह सकते ना. सो when we produce goods by exploiting nature, or natural resources, it is an activity of primary sector. This is what is primary. Got it? Why primary? इसको हम primary क्यों कह रहे हैं? प्लीज समझो. ये इसलिए कह रहे हैं because it forms the base of all other products. दूध नहीं होगा तो पनीर, दही, चॉकलेट्स एंड दूध के और भी बहुत सारे चीज, सो मेनी प्रोडक्ट्स. कॉटन नहीं होगा तो कपड़ा कहां से आएगा? We are so much dependent on the natural products. So for all the other products, the base is the natural product that we subsequently make. Since most of the natural products we get are from, ज्यादातर most of the natural products we get are from natural, I mean are from ज्यादातर हमको कौन से यहां से मिल रहा है? एग्रीकल्चर, डेयरी, ओके, फिशिंग, फॉरेस्ट्री. अरे जंगल को तो भूल ही गए. आधा से ज्यादा सामान जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तो जंगल से आता है. We forgot that. So this sector is also called as agriculture and related sector. Agriculture and related sector. Got it?
एग्रीकल्चर सेक्टर से हमको ये सारा मिल रहा है. सो रिलेटेड सेक्टर से वी आर गेटिंग ऑल दीज बेनिफिट्स. Yes, dear students, it is the benefits that we are getting. ये तो हो गया प्राइमरी सेक्टर. इसके बाद कौन आ रहा है? प्राइमरी सेक्टर का इतनी चीजें समझ लीजिए. ये भी याद रखिएगा, द क्वेश्चन इज आस्क्ड that agriculture and related sector is also known as dash, then you have to mention primary sector. Okay. Now, the secondary sector provides. सेकेंडरी सेक्टर से हमको क्या मिल रहा है? Provides or covers all the activities in which natural products are changed into the form, into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. Natural products, ठीक है, are changed into ways of manufacturing. Secondary sector covers activities where natural products are changed into कह सकते हैं, या अदर फॉर्म्स थ्रू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो सामान जा रहा है वो कच्चा माल है ना. इट इज ऑल बीइंग मैन्युफैक्चर्ड. सो we associate with the industrial activity. We also associate it with the industrial activity. It is the next step after primary. Primary के बाद सेकेंडरी, सेकेंड नंबर पे आ रहा है. प्राइमरी इज तो फर्स्ट, सबसे पहले हमको उसी की जरूरत है. तो प्राइमरी, then it comes in the next stage, so it is secondary. The product is not produced by nature but has to be made. The product is not produced by nature. ठीक है, नेचुरल वाला तो प्राइमरी में आ गया. हियर व्हाट वी आर डूइंग, it has to be made and therefore some process of manufacturing is essential, but through the process of manufacturing. ठीक है, ये तो हो गया सेकेंडरी. यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है. ये कहाँ पे हो रही है? दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट होम. कच्चा माल किसी न किसी तरह से चेंज हो रहा है. दिस रॉ मटेरियल इज बीइंग चेंज्ड इनटू सम और द अदर फॉर्म. सो कहाँ पे हो रहा है ये? दिस कुड बी डन इन अ फैक्ट्री और वर्कशॉप और एट होम. घर पे भी कर रहे हैं. तो जैसे कॉटन फाइबर जो है, वी आर यूजिंग फ्रॉम द प्लांट एंड स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ. कॉटन आ गया नेचुरल से. अब सेकेंडरी स्टेज पे हम क्या कर रहे हैं? वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ. कपड़े बनाते हैं और उसके बाद पहले तो थ्रेड बनाते हैं कॉटन से, एंड फ्रॉम दैट थ्रेड वी आर गेटिंग द क्लॉथ. सो फ्रॉम कॉटन we
अब इसमें सेकेंडरी देखो, ये तो हो गया प्राइमरी, ठीक है। इसके बाद वी मेक थ्रेड, स्पिन यार्न मीन्स मेकिंग थ्रेड, ओके, एंड क्लोथ बनाते हैं, वीव क्लोथ, कपड़े भी बन गए जी, ओके। अब शुगर केन, अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, शुगर केन इज अ रॉ मटेरियल, वी मेक शुगर एंड गुड़। इसमें शुगर केन का देखो एग्जाम्पल्स बहुत सारे पूछे जाएंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी में हेल लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, जिसमें कि some forms are mentioned and then you have to identify whether it is into the primary sector or the secondary or the tertiary. Sugar is produced from sugarcane. Got it? चीनी आ गई। अब अर्थ को हम क्या करते हैं, इनटू ब्रिक्स एंड देन यूज ब्रिक्स टू मेक हाउस एंड बिल्डिंग्स। मिट्टी से ही तो ईंट बन रही है। सो अब देखो, जस्ट सी हाउ रिफाइंड वी आर मेकिंग द, बड़े बड़े घर भी ईंट से ही बनते हैं। अब वो अंबानीज वाले घर बहुत कम होते हैं जहां पे कि सब स्टील का और अलग तरीके का मटेरियल यूज होता है। अदरवाइज कॉमन आदमी, फॉर कॉमन पीपल, ईंट से ही, ईंट के भट्टे से ही सारा बन रहा है। सो यू जस्ट सी द सेकेंडरी सेक्टर, जहां पे अर्थ इज converted to brick, ठीक है। मट्टी से हमने ईंट बनाई एंड bricks are used to make house. Changing the forms from primary to secondary. ये सेक्टर जो है ना, इट इज एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। पहले वाले को हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर कहा था। दिस सेक्टर इज related to industries, so it is also called as industrial sector. Remember, which sector is also called as industrial sector? So secondary sector is also called as industrial sector. दो हो गए, मेजरली तीन है। एक तो हमने नेचर से ले लिया, नेचर से लेके हम उसको जो है वी हैव कम टू द इंडस्ट्रीज में उसकी अच्छे से मैन्युफैक्चरिंग कर ली। थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज जो है वो आती हैं टर्शियरी सेक्टर में। Third kind of activities are included in tertiary sector. ठीक है, ये थोड़ा सा बाकी दोनों से अलग है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द above two. क्या है ये? These activities help in the development, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को डेवलप करने के लिए क्या होता है, these activities help in development of, please remember that, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आज की दुनिया में तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी कैन नॉट वर्क विदाउट टर्शियरी। Once upon a time there was no need of tertiary sector, प्राइमरी सेकेंडरी से काम चल रहा था। But now, in today's time,
tertiary is growing on a very vast pace. Tertiary बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है and most essential factor of development. क्या होता है? These ये तो they do not produce a good, but they are an aid or a support for production process. यहाँ पे कुछ भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं होता है. They are an aid for production of goods. Support, aid is support. Okay. And believe me, children, the primary and secondary is very much dependent on the tertiary nowadays. आजकल तो tertiary पे lot of dependence is there. Okay. इसमें क्या होता है? Goods that are produced in, पहला इसका example समझो, goods that are produced in primary or secondary would need to be goods produced in primary or secondary are to be carried by trucks ठीक है trucks or trains to the wholesale or retail shop. होलसेल शॉप पे या रिटेल शॉप पे ले जाना बहुत जरूरी है. कभी कभी क्या होता है, इट मे बी वेरी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स. गोडाउन्स में भी तो स्टोर करना पड़ता है. सब्जी उब्जी तो बहुत तेजी से खराब हो जाती है एवरी टाइम यू कैन आउट. तो क्या होता है, वी टॉक टू द पीपल ऑन टेलीफोन और सेंड लेटर्स. तो गोडाउन्स को मैनेज करते हैं टर्शियरी सेक्टर. समटाइम्स it is kept in godowns, which is managed by tertiary sector. समझ गए? गोडाउन्स में रख रहे हैं तो वहां पे भी तो लेखा जोखा होगा, कुछ रिकॉर्ड्स मेंटेन होंगे. कितना गुड्स आया, कितना गुड्स बाहर गया, कितना खराब हो गया, दूसरे दिन कितनी सामान लेके जाना है, विच इज टू बी स्टोर्ड इन द कोल्ड स्टोरेज. तो अब आप ये समझो, टर्शियरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एज सर्विस सेक्टर. दो नाम हैं. ऑल दीज सेक्टर्स हैव गॉट two names. Primary, agricultural sector, secondary, industrial sector, and tertiary is the service sector. Service provide कर रहे हैं. Transport, storage, communication, banking, trade. These are examples of tertiary activities. Major tertiary activities are happening through this. क्या है? These activities ना generate services. This is also, इसलिए इसको service sector कहते हैं. They are not producing goods, but they are providing service. अच्छा, गाड़ी चाहिए, ओके ठीक है. वो चाहिए, वो टेम्पो चाहिए, ऑटो चाहिए, मतलब सर्विस प्रोवाइडिंग इज देयर मेजर एक्टिविटी. गॉट इट? अब सर्विस सेक्टर में क्या है कि बहुत तरीके की एक्टिविटीज है विच वी वुड बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. Students, I wanted to share this information with you that lot of data, because the chapter that we have started, sectors of Indian economy, कहाँ पे कितना प्रोडक्शन हुआ है, how much has been produced, how much has been consumed, lot of
economic activities that are happening in the country, उसका डेटा हमको कहाँ से मिल रहा है. You should be aware of that. That's why I thought I'll be sharing this with you, that the GDP data that is used in this chapter, please remember, it is the factor caused by industry of origin at 2011-12. हमने यहाँ 2011-12 का डेटा यूज़ किया है, सो इट इज़ 10 years बैक. हो सकता है आज का डेटा बिल्कुल अलग हो गया हो. It might have changed. I'll be discussing it in the class. Some places I can ask you to bring some recent datas. It would be a fun activity and we will be continuing it in that manner only. Okay, children? This is just one point of information that I wanted to share with you. Okay, children? Thank you, children, and all the best to you.